In last class, we have done colligative property, right? See, colligative property, colligative, derived from the Latin word co. See, co means together, ligar means to bind. It means, अभी समझा ना तुम लोग को? It To means bind, get bind, together. yes, to bind together. Fine. तो like this property क्या होती है? This depends upon वो number of particles कितने हैं. ठीक है, number of particles in the solution. So colligative property depends upon the number of particles, solute particles, right, in a particular solvent. तो some colligative properties are there जिसका यूज होता है अननोन सब्सटेंस का मोलार मास डिटेक्ट करने के लिए. जनरली ये 4 colligative properties है. इसमें से last time we have done relative lowering of the vapor pressure. Today we will be doing next colligative property, which is called elevation in boiling point, right? Okay, first of all, to understand this colligative property, we need to understand what is called boiling point. What is called boiling point, bachcha log? Ma'am, Yes. ma'am, the temperature at which the vapor pressure of the liquid Wait, becomes. Suril, wait, Suril, wait. Who will tell me boiling point? हम सिंपल वर्ड्स में तो एक मिनट, one at a time. Yes. Tell me, Aisha. I mean simple words, when any substance starts to boil at that point it is called one point. No, the simple words में primary second. Yes, bacha, correct. But in chemistry, if you will answer like this, na, so it is not digestible. Yes, I know. Yes. And do you know, Aisha, boiling point word was in dash chapter last year. Do you know, Aisha? Fifth. Fifth. Okay. Good question. Suril? Ma'am, 5th chapter में था. States of matter. States Yes. of matter. Okay. Anyone from you again boiling point? Chalo. Ma'am, Yes, Vansh. equilibrium condition between vapor pressure and atmospheric pressure. Sure? Yes. Okay, but one word you are forgetting. Correct. But મેં one એમાં કોર્સમાંથી reduce થઈ ગયો તું વેપર પ્રેશર એટલે આ ટોપિક નહીં કરાયો. Okay. Anyway. Chalo, leave it. See, boiling point, but it is like concept के लिए it is very important. ठीक है. See, अब तक तुम ऐसे छोटे थे तब ऐसे ही देखते थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई. जब वाटर ऐसे बबल 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 दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, it means it is called its boiling point. It is not like that, right? Yes, Suril, you can tell. Suril, don't laugh. Just start telling boiling point. Give me definition. Ma'am, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. Okay. देखो, now you know it. तुम जब water, suppose in this container water is there, okay, और यहाँ पे अगर if मैं यहाँ पे थर्मोमीटर रख रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तुम जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर होगा. समझ लो राइट नाउ वेपर प्रेशर कोई भी वैल्यूज कंसीडर कर लो तुम. सबसे पहले मुझे ये बताओ, राइट नाउ वाटर इज एट द रूम टेम्परेचर. यस यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, अभी वाटर, हाँ वाटर क्या है अभी, कौन से टेम्परेचर पे है वाटर? Room temperature. यस. अभी तुम क्या करने वाले हो? Boil. Boil. बॉइल. ठीक है. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 180. Yeah, 1 atmosphere. 1 atm. 180.
Now, if you are increasing the temperature, by increasing the temperature, vapor pressure पे क्या effect होगा? Vapor pressure The increases. pressure increases. Sure? Increases. Yes. Okay. क्यों बढ़ेगा? And because जो particles है उसकी intermolecular वो बढ़ेगा, the pressure increases. हाँ, A- particles kinetic energy increases. They Yes, are. ma'am. Increases. More particles will go Yes. above the solution. A, So it B will exert more direction. vapor pressure. Okay. अभी क्या होगा? More and more particles are coming up. Yes. Okay. Yes. हाँ, तो क्या होगा? ऊपर 1 atmosphere pressure ले ले हम. Atmospheric pressure is 1 atm. Fine. अभी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब समझो, हाँ, अच्छे से समझो डेफिनेशन. नाउ इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑब्वियसली यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा. वैल्यू 0.22, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9 और 0.9 के बाद जब वो 1 वैल्यू पे पहुंचेगा, योर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. इट मीन्स जब तुम्हारा सॉल्यूशन जो भी है डजंट मैटर, वाटर ही है. राइट नाउ वी हैव टेकन वाटर. सो वाटर, जब व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हेन इट रीच टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टाइम इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो समझो, सबसे पहले इसका नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था जब 0.2 एटमॉस्फेयर था. अब क्या हुआ? तुमने बढ़ाया. तो जब ये 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचेगा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे पहुंचेगा, तब क्या होगा इसका टेम्परेचर? 100 degrees Celsius. 100 डिग्री. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है इसमें. 100 डिग्री सेल्सियस. यानी जब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचेगा तो इसको तुम 100 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? Normal boiling point. श्योर? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. तो फिर ये 99.97 होगा. Ma'am, normal boiling point कितना? Normal boiling point. And Suril, another one was? Standard boiling point. Yes. ये 99.97 यानी 100 ही है. करेक्ट. यहाँ पे हम नॉर्मली बोलेंगे इसको. Yes, this is called normal boiling point. और दूसरा boiling point आता है standard boiling point. Ma'am, वो 298 Kelvin पे होगा. ना बच्चा, नो 298 तो? Kelvin पे नहीं होगा. Generally we are using normal boiling point. Suril, do you remember the difference or any other Yes, student? ma'am. Yes, ma'am. I remember. हाँ, what? Ma'am, standard boiling point we consider the pressure as 1 bar. And in Very normal good. boiling Yes. Ma'am, what? हाँ, समझा रहे हूँ. देखो, तुम्हारा जनरली देखो, सबको जिसको नहीं पता है अच्छे से सुनो. तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कंसीडर इट एज अ 1 एटमॉस्फेयर, राइट? 1 atm. तो जब तुम्हारी ये वैल्यू, वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है, तो उस टाइम तुम्हें जो थर्मोमीटर है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखाता है. तो जब तुम 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर करोगे तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है. पर जब तुम 1 बार कंसीडर करोगे तो who knows the values between atmosphere and bar? Ma'am, 1 atm Ma'am. equal to 1.013 bar. 013 bar. देखो, ये याद है सबको? Yes, ma'am. ma'am. हाँ, वेरी गुड. Yes, ma'am. अब तुम लोग एक चीज दिमाग में रखो, 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचना है और 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ Pascal. नो 1 बार इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर पे पूछ रही हूँ. 0.987 atmosphere. Yes, ma'am. Yes. 0.987 atmosphere. यस. अब थोड़ा दिमाग और लॉजिक लगाओ. देखो, दिमाग और लॉजिक थोड़ा. यहाँ पे तुम्हें 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचना था. यस Yes, और ma'am. नो? ठीक है. तो 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचना, तो तब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होने लगा, तो इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है. अब क्या है? अब क्या करना है तुम्हें? 1 bar करना है pressure. 1 बार करना है प्रेशर. अब 1 बार पे पहुंचना है. 1 बार पे पहुंचना है.
जब 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचते हो तो इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, समझ में आया? इसको Yes, ma'am. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। Yes. और जब 1 बार पे पहुंचना है तो कितना एटमॉस्फेयर लगेगा? 0.987. 0.87. इट मीन्स थोड़ा जल्दी बॉयल होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes. है ना, इसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. 1 Yes, एटमॉस्फेयर पे पहुंचना है, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, तो वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और अगर हम 1 बार कंसीडर करेंगे, 1 बार, तो वो होता है 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा 0.987। Yes. Yes, 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987। 1 बार पे पहुंचना है यानी 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचना, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है ऑलवेज। yes, ma'am. ठीक है, तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज आई थिंक अराउंड 99.6 डिग्री सेल्सियस। Yes, ma'am. 99.6 degrees Celsius. Ma'am, standard boiling point क्या रहा यूज था? तो जनरली वी आर यूजिंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बच्चा। हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही सबका बॉइलिंग पॉइंट नोट डाउन किया है हमने। वैल्यू वो ही लेते हैं हाँ। न्यूमेरिकल में, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही लेते हैं, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस बोथ। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, Oh. ma'am. એટલે મેમ આમાં સ્ટાન્ડર્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એપ્લિકેશન નથી. क्या बच्चा? સ્ટાન્ડર્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ નો કોઈ એપ્લિકેશન નથી ને. No. We have to do normal boiling point. So what is ultimately boiling point? It is the temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. चलो, तुम्हें पता है बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार पे क्या डिफरेंस है? ये भी बोला था मैंने तुम लोग को लास्ट ईयर। बार, तुम लोग ने नहीं सोचा मैडम प्रेशर क्यों एटमॉस्फेयर और क्यों फिर बार में आ जाता है? ये 1 बार कहाँ पे यूज होता है? जनरली हमारे अराउंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 बार कहाँ पे यूज होता है? आई टोल्ड Ma'am, यू। meteorology. ओके, वेर बट thermodynamic. no, that is correct, but at which level we are measuring Sea pressure level. in the bar? Yes, sea level पे। Sea level. सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे लाइक वो एक यूनिट स्टैंडर्ड किया गया है बार, बट जनरली वी आर एटमॉस्फेयर में हमारे आजू बाजू क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक Atmospheric प्रेशर, pressure. प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आता है, इसीलिए सी लेवल पे थोड़ा डिफरेंस आता है, एंड दैट इज वाई उसको 1 बार बोला। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर ऑल ऑफ यू? अब Yes, समझ ma'am. लो, समझ लो, एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें वाटर है, एंड इन दिस कंटेनर ऑयल इज दैट। फाइन, ओके। अब नाउ you tell me which one is more volatile? Water. Obviously water। तो ऑलरेडी इसमें ऊपर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होता होगा? Water. 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 ठीक है, तो जब तुम इसको टेम्परेचर यहाँ पे दोगे, इसका टेम्परेचर दोगे, तुम यहाँ पे टेम्परेचर दोगे, ठीक है, तो इसको 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचना है। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी 0.5 बार है, समझो, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, ठीक है, और ये 0.2 बार है, तो टेल मी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Oil. ऑब्वियसली Oil. ऑयल। क्यों? क्योंकि दोनों का टारगेट है 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचना, और ये वाटर मोर वॉलेटाइल, ऑलरेडी 0.5 बार एटमॉस्फेयर, सॉरी ऑलरेडी 0.5 एटमॉस्फेयर पे है। समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी 0.5 एटमॉस्फेयर पे है, तो इसको 1 एटमॉस्फेयर में पहुंचने में जल्दी पहुंच जाएगा, तो लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, यस। जबकि इसको 0.2 से 1 एटमॉस्फेयर में जाने के लिए टाइम लगेगा, तो मोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हायर होगा। लॉजिक समझ में आ गया सबको कि क्यों Yes, ma'am. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? क्लियर? યસ મેમ. ठीक है, तो अब हम इसको रिलेट करेंगे, किससे Yes. रिलेट करेंगे? इसको हम किससे रिलेट करेंगे बच्चों? Vapor pressure. Vapor pressure. अरे क्या वेपर प्रेशर?
boiling Rawls point Rawls law. of Boiling. Rawls law. रॉल्स Rawls लॉ law. कहाँ से आ गया? इसको रिलेट करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Liquidative properties. क्या तुम लोग भी कुछ भी। चलो हम क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी है जो कर रहे हैं Elevation. उसमें ये क्या कर रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग Elevation in boiling. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? एक्सप्लेन। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊं कि व्हेन वी आर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनटू वॉलेटाइल सॉल्वेंट। समझ लो पहले ये कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट हुआ करता था, अब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। Increase. इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बिकॉज ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो क्या करता है? वेपर प्रेशर रिड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली पहले ही समझाया था ना कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो वाटर का ऊपर ज्यादा जल्दी नहीं जा सकता है जितना पहले में जाता था। ये इसको अट्रैक्ट भी करके रखता है, ये सरफेस भी रोकता है। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो समझ लो ये प्योर वाटर का कंटेनर था जिसमें 0.5 बार ऑलरेडी वाटर वाज एक्सर्टिंग 0.5 बार। अब जब तुमने थोड़ा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया तो इतने वाटर के पार्टिकल ऊपर नहीं जाएंगे ना जितने प्योर वाटर में जाएंगे, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ लो ये हो गया 0.3 बार। तो नाउ टेल मी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया 3 बार और एटमॉस्फेयर यू कैन से, राइट? मैं बार बार लिख रही हूँ, हम एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नाउ क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बार ऑल्सो यू कैन टेक, देन यू हैव टू मेंशन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ये सॉल्यूशन का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट of the solution is always higher than boiling point of the pure solvent. यस मैम। Yes. लॉजिक समझ में आ गया सबको? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होगा, जो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, जबकि प्योर सॉल्वेंट में ऑलरेडी वो ऊपर चले गए होंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस Yes, मैम। ma'am. Okay, sure. So now let's start with the theory part. Notes are visible? Yes, ma'am. Okay, see, define the temperature at which boiling point क्या है? vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, और उस टाइम इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाता है, बता दूं मैं तुम लोग को। यस मैम। इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाता है, तभी ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा, ऊपर पार्टिकल भर जाते हैं पूरे। ठीक है, तभी वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। So temperature at which vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure is called boiling point. Water boils at a C 373.15 Kelvin, that is 100 degree Celsius. ठीक है, ये कब है? 1 एटमॉस्फेयर पे। देखो 1 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन, ये देखो 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है। क्या है? एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ वुड यू डिटरमाइन द मोलार मास, क्योंकि हमारा तो टारगेट मोलार मास ही है ना, मोलार मास ही फाइंड करना है। See, when a non-volatile solute is added to volatile solvent, again, when a non-volatile solute is added to volatile solvent, the vapor pressure of solvent decreases. The vapor pressure of solvent decreases. Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Therefore, solution requires more heating to reach atmospheric pressure. Yes. यस मैम। Dhruv, are you getting the topic? Dhruv, Yes, ma'am. are you getting whatever I'm teaching? Yes, ma'am. Okay. चलो, मैं किसी को भी बीच में इन बिटवीन एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगी, विच टॉपिक इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये पूछ सकती हूँ मैं। सो बी अलर्ट ऑल ऑफ यू।
Hence boiling point of a solution is always higher than that of the pure solvent. अभी जो बताया वैसे Yes. boiling point Aisha of solution is always high. Aisha नहीं, अभी तो सबके पास आ गई है hard copy. Now she will not send the pic. You have to write boiling point of solvent. ये लिखना है, ये लिख देना है. जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करती हूँ, also have to do. Okay. Now this increase in the boiling point of the solution, increase in boiling point is called elevation in boiling point, जिसको इंडिकेट करेंगे डेल्टा टीबी से. किससे इंडिकेट करेंगे? सी डेल्टा डेल्टा यानी टीबी इंक्रीज हो रहा है. अभी Yes, यहाँ पे ma'am. हम ऐसा बता रहे हैं इंक्रीज. एलिवेशन बी यानी बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे समझ में आ गया सबको? अब मैं ग्राफ समझाती हूँ तुम लोग को. ग्राफ क्या है? एनी डाउट टिल हियर? एक बार डेल्टा टीबी समझा. Delta TB is just elevation in boiling point, बच्चा. For example, see, for example, my water having 100 degrees Celsius and my solution, when I am adding non-volatile solute into the water, तो उसका boiling point अगर 150 डिग्री सेल्सियस होगा तो डेल्टा टीबी इज 50 डिग्री सेल्सियस. समझ में? Yes. इट्स कॉल्ड एलिवेशन. इतना एलिवेशन हुआ ना 50 डिग्री जितना. Yes. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. ओके. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, look at towards the graph now. See, यहाँ पे पहले हम एग्जांपल देखते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज अगर तुम सॉल्यूशन सुक्रोज का लोगे, शुगर ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो 1.013 बार, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा ऑलवेज. ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर होता है ना. 373 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं होगा ना ये 1 एटमॉस्फेयर जितना, क्योंकि तुमने सॉल्यूशन बना दिया. अभी तो समझा है तुम लोग को. जब Yes, सॉल्यूशन बनता है वाटर में से, वो 100 पे कभी बॉईल नहीं होता है. क्यों? जब थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा तो इतनी वैल्यू नहीं आएगी उसकी. तब समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In order to make this solution boils, its vapor pressure must be increased. समझ लो 100 पे ये स्टिल 0.8 बार पे ही पहुंचा है, जबकि वाटर 100 पे एग्जैक्ट 1013 पे पहुंच जाता है. समझ में आया? तो अभी भी तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है ना? अभी भी स्टार्टिंग एग्जांपल थी समझा आवाज તમારો ક્રેક થતો. for everyone it was No. ना मैम. No, ma'am. okay. See, when you are taking one container और इसमें वाटर है, ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 1.013 बार पे पहुंच जाएगा. दैट इज 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचने में इसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. अब यही कंटेनर में अगर तुम शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये नहीं पहुंचेगा अभी 1.013 बार, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. ये अभी पहुंचेगा समझ लो 0.8 बार. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल. तो और इंक्रीज, तुम्हें अभी रीजन बताया, वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन का, तो 100 पे और अभी भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड यहाँ तक पहुंचने के लिए. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉइल्स, इट वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड टू 1.01. देखो 0.8 बार ही है 100 पे, तो अभी भी और इंक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर. So by increasing the temperature above the boiling temperature of pure solvent, that is 100 से और increase करो. क्यों? क्योंकि अभी तक ये टारगेट 1.013 पे नहीं पहुंचा है, 0.8 पे ही पहुंचा है 100 डिग्री पे. तो its boiling point is 373.52 Kelvin in 1000 ग्राम of water. यानी तुमने 1 मोल सुक्रोज ऐड किया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 73.15. और इसका क्या है? बहुत डिफरेंस नहीं आया है, जस्ट वैल्यू गिवन. सो एलिवेशन इन बॉइल, यानी ये टेम्परेचर पे 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचता है, और वाटर इतने टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचता है. इट मीन्स ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और ये है
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, अब तुम्हें पता है डेल्टा टीबी क्या है? सुक्रोज मैंने बोला था स्प्लिट नहीं होता है, वैसे ग्लूकोज भी स्प्लिट नहीं होगा, Yes, ma'am. यूरिया भी स्प्लिट नहीं होगा, तो ये तीनों तीन का बॉइलिंग पॉइंट कॉमन ही होगा। क्यों? क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मैंने 1 मोल शुगर लिया, 1 मोल ग्लूकोज लिया, 1 मोल यूरिया लिया, तो क्या होगा? ये सबका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन Equally इन होगा। बॉइलिंग पॉइंट Elevation in boiling point Same same. होगा। अगर वाटर 100 है तो फॉर एग्जांपल ये सबका 110 है, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ ना, उसने कंटेनर में पार्टिकल पे डिपेंड करता है, कितने रोक रहे, कितना ट्रैक्शन फॉर्म कर रहे, कितने रोक रहे। समझ में आया? तो सब में 1 मोल यानी सब में कॉमन पार्टिकल है ना, Na, सब में particles ma'am. are common, so that's why elevation in boiling point is also equal, which depends upon the number of solute molecule rather than nature. Okay, this is all about the theory. Now numerical part and graph. यहाँ तक समझ में आया सबको? એટલે બધામાં 10 degrees હશે ને એલિવેશન ઇન બોઇલિંગ हाँ, वो एग्जाम एज ए एग्जाम्पल बोला दिव्या। હા મેમ એટલે એક્ઝામ્પલ ની જ વાત કરું यस, चलो ग्राफ समझते हैं क्या है। ग्राफ में क्या है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। Obviously, वर्क Yes, करते हैं ma'am. वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर की कौन सी लिमिट चेक करनी है हमें, ऑल ऑफ यू? 1 atmosphere. 1 एटमॉस्फेयर और 1.0 180 L. या और 1.013 बार। चलो स्टार्ट करो। समझो, ग्राफ ऐसे देख के ये सब क्या ड्रॉ किया ऐसे लगता है, पर ऐसा नहीं है, समझो। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50, 60, 70, 80, 90, ये आ रहा है 100 डिग्री पे। तो जब मैं 100 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर चेक करूंगी तो देखो इस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये 1.013 बार 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन है। तो ये तुम्हारा वाटर कब ये लाइन को क्रॉस करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, ये देखो वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। यहाँ पे एक वैल्यू ऐसे आएगी जहां पे तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो रहा है वाटर का वेपर प्रेशर, तब तुम टेम्परेचर चेक करोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया सबको? Yes. हाँ, और सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में Temperature बढ़ा रहा है और ना अभी इसका यहाँ तक वैल्यू नहीं पहुंचा होगा। समझ में आया? देखो ये सॉल्यूशन है, समझो ये रहा उसका ग्राफ, तो अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा होगा वैल्यू, 100 पे नहीं है, देखो यहाँ तक ही है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ जाके ये 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचता है। समझ में आया? तो ये वैल्यू समझ लो 110 या वॉट एवर, एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ। समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन यहाँ पे सॉल्वेंट। Solvent. ठीक है, यहाँ से तुम कर सकते हो, यहाँ से बड़ा 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 लाइक दैट, ऐसा कर सकते हो तुम। ठीक है, ये मैंने यहाँ से किया। फिर वेपर प्रेशर बड़ा बड़ा बड़ा, टेम्परेचर बड़ा, तो ये सॉल्यूशन। देखो 100 पे तो ये 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचा ही नहीं है सॉल्यूशन। समझ में आया? देखो ये पहुंच रहा है यहाँ पे, जब इसका नीचे ये टीबी, टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लिखना है तो लिख देना इसके ग्राफ पे। टी नॉट बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट यानी प्योर के लिए यूज करते हैं, याद रखना, वाटर जो भी लो तुम। तो ये डेल्टा टीबी होगा बच्चा लोग, ये डेल्टा टीबी होगा। Yes, ma'am. Okay, Yes, what is ma'am. delta TB? What is the higher value minus lower value? Yes, Yes. ma'am. Elevation. हाँ, तो what will be the higher value? Obviously solution Yes, ma'am. TB minus TB naught. T not B. ये याद रखना है for numericals. Ma'am, TB not એટલે શું? Boiling point of pure solvent. अगर वाटर लेते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस। चलो क्लियर all of you? Yes, ma'am. Okay, so this is all about the graph. Hope graph is clear.
Graph is clear? Yes, ma'am. When they are asking you in the board examination this theory for 4 marks, you have to draw the graph, you have to plot the graph. देखो अब तक ऐसा माना गया, देखो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट टी नॉट बी, टीबी इंक्रीजेस डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टी नॉट बी, समझा दिया. डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. देखो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो डेल्टा टीबी था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी था, यानी जितनी मोलालिटी बढ़ेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है. ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बात कर रही हूँ मैं. Yes, ma'am. It means experiments show that dilute solution, the elevation in boiling point is directly proportional to concentration. Obviously. क्यों पता है? देखो एक सिंपल प्रैक्टिकली करके बताओ, वो एक्सपेरिमेंट में हुआ, यहाँ पे ये प्रूव करके बताती हूँ. देखो मैम जितनी मोलरिटी होगी उतने मोल ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर तो कम ही होगा ना. एग्जैक्टली देखो जस्ट फॉर एग्जांपल ये मोलालिटी है 0.1 मोलाल, ये मोलालिटी है 0.1 मोलाल. तो और ये सब्सटेंस 1, और नेक्स्ट अगर मैं मोलालिटी को बढ़ा रही हूँ 0.5 मोलाल, तो किसमें सब्सटेंस ज्यादा होगा? 0.5 molar. मोर सब्सटेंस होगा. यस तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का समझ लो 110 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मोर सब्सटेंस है, मोर Yes, यस मैम. है ना. 130 तो होगा. हाँ समझो boiling 130 होगा. समझ में आया? यस मैम. तो पहले केस में डेल्टा टीबी क्या होगा? 100 माइनस 110, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस. यस मैम. और दूसरे केस में डेल्टा टीबी क्या होगा? 30 डिग्री 30. सेल्सियस. समझ में आया कैसे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Yes, टू ma'am. मोलालिटी? Yes. कि जितनी मोलालिटी ज्यादा ऑब्वियसली उतने मोल ज्यादा सॉल्यूट के, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो उतना डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा. समझ में आया? सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाओ, के बी रखो. ठीक है, क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम. अब हमें मोलर मास, वेर एम क्या है? मोलालिटी. केबी को क्या बोलोगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगा, या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास डेल्टा टीबी केबी इनटू एम. कैसे? मोलालिटी की फॉर्मूला रखेंगे W2 1000 M2 by W1, क्योंकि ये ग्राम में लिया है तो ऊपर 1000 कर देंगे. डेल्टा टीबी में सब्स्टिट्यूट करो मोलालिटी की फॉर्मूला, के बी W2 1000 M2 डिवाइड बाय W1 सॉरी. मोलालिटी की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट की है ऑल ऑफ यू. यस मैम. यू नो इट वेरी वेल. अब ये समझाने की जरूरत नहीं है ना. No, ma'am. हाँ, तो मास ऑफ मैम सॉलिड, W1 कैसे? ओके इट इज द वेट ऑफ हाँ सॉल्वेंट. मैम खबर पड़ी. सॉल्वेंट इज 1, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम 1 लेते हैं. देखो ऊपर आता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1000 नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राम ले रहे तो ग्राम Yes, ma'am. 1000. समझ में आया सबको? मोलर Yes, ma'am. फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. तो देखो के बी दिस दिस दिस, बट आई वांट M2 ना, हमारा टास्क तो है M2 मोलर मास डिटरमाइन करना. तो M2 जाएगा सामने या डेल्टा टीबी आ जाएगा नीचे, बाकी सब एज इट इज. समझ में आया इतना? यस मैम. चलो केबी क्या आएगा इसका? केबी क्या आएगा? टेल मी केबी. डेल्टा टीबी, Delta TB into W1 into M2 by 1000. डेल्टा टीबी इंटू M2 into M2 into W1 W1 1000 by upon W2. W2 into 1000. ओके. थोड़ी थोड़ी जगह रखी मैंने. यू नो डेल्टा टीबी का ये Unit Unit. Kelvin. Sir, Kelvin. Kelvin. क्योंकि डिग्री सेल्सियस होगा पर हमें ऐसा यूनिट चाहिए, तो ये केल्विन. मोलर मास का यूनिट, Gram per mole. gram per Gram per mole. mole. ये W का यूनिट, Gram. Gram. Cut हो जाएगा. ग्राम. ये W2, Gram. Gram. ग्राम. और इसको पता है मैंने 1000 ग्राम पर किलोग्राम लिखा था, किसी को याद है? Yes ma'am. जब मैंने इसको कन्वर्ट Yes, करना ma'am. था तो Yes, ma'am. 1000 ग्राम पर किलोग्राम लिखा था मैंने, Yes. तभी जाके ये कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो देखो क्या कैंसिल हो जाएगा? ग्राम 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 कैंसिल हो जाएगा.
और ये ग्राम ग्राम, किलोग्राम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, Yes, ma'am. फाइनल Kilogram. यूनिट का Numerator. केल्विन, किलोग्राम, और ये पर मोल देखो एज इट इज। और कोई बोलेगा कि यार ये मुझे पता नहीं चला ये 1000, तो ये मतलब यहाँ पे किलोग्राम लिख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ। Yes. तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ केबी, पर ये केल्विन किलोग्राम पर मोल याद रखना है। चलो, डन ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके, जस्ट डू दिस न्यूमेरिकल क्विकली। एक मिनट, ये न्यूमेरिकल नहीं है, नोट है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो केबी को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन द सी यू नो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। तो व्हाट इज केबी? Delta TB by m. small m. TB upon M. डेल्टा टीबी अपॉन एम। Small m. तो जब मोलालिटी सॉल्यूशन की 1 हो जाएगी, दैट टाइम माय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. वो ही है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में भी डिफाइन है इट इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना ही होगा व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, और यूनिटी कब होती है? अभी सिखाया। 1 मोलालिटी कब होती है? जब 1 मोल डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। अभी सिखाया ना, आगे के एक न्यूमेरिकल के डाउट्स में। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, that's it. Okay, we'll do numerical based on this concept in next class. I will start with the remaining colligative properties in next class. Okay, done. Ma'am,